چھوٹی سی بچی تھی، اس کے ماں باپ مر چکے تھے، وہ بیچاری گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ایک امیر آدمی کے گھر میں اسے بہت کام کرنا پڑتا، وہ پانی بھر کے لاتی، کھانا پکاتی، بچوں کو دیکھ بھال کرتی، اور اتنے کاموں کے بدلے میں اسے بس 2 روٹی ہی ملتی تھی۔ کھیلنا کودنا تو کیا، 2 گھڑی آرام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آدمی بہت چالاک اور بے رحم تھا، اور اس کی بیوی تو میاں اس سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ ایک رات چاند آسمان پر چمک رہا تھا، باہر بہت سردی تھی۔ امیر آدمی کی بیوی نے اس بچی کو پانی لانے کے لیے کہا۔ بچی پانی بھرنے باہر گئی۔ جب وہ تالاب پر پہنچی تو سردی سے اس کے پیر پتھر ہو گئے، تالاب کا پانی بھی اوپر سے جمع ہوا تھا۔ بچی نے برف میں سوراخ کیا اور پانی کی بالٹی بھر کر گھر واپس اسلم اسکول سے واپس آیا تو بہت پریشان تھا۔ آتے ہی وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس کی امی کچن سے کام کر کر باہر نکلی تو ان کی نظر اپنے لاڈلے بیٹے پر پڑی، جو پلنگ پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر اسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے انہیں روتے ہوئے بتایا، امی میرے آج کا دن ہی خراب ہے، صبح صبح بارش ہونے لگی اور میری آنکھ بھی دیر سے کھلی، جس کی وجہ سے میں اسکول وقت پر نہ پہنچ سکا اور ٹیچر سے ڈانٹ پڑی۔ آج ہمارا ٹیسٹ بھی تھا، میں تو پہلے ہی سب کچھ بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے ٹیچر سے مار بھی پڑی۔ ہاف ٹائم میں میری ایک لڑکے سے لڑائی ہو گئی، میں نے اسے مارا اور اس نے بھی مجھے مارا، پھر یہ ہوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کو سکے جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے پاس ایک تھیلی ہوتی تھی، وہ اپنے تمام پر سکے اس تھیلی میں رکھتا۔ وہ ہر وقت اس تھیلی کو اپنے پاس رکھتا تھا، اس خیال سے کہ یہ چوری نہ ہو جائے۔ ایک دن اس کی تھیلی مکمل بھر گئی، اب وہ اور زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ ایک دن وہ ایک ٹوٹے ہوئے پل کے اوپر سے گزر رہا تھا، جس کے نیچے سے پانی بہتا تھا۔ اچانک اس بیچارے کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اس میں جا گرا۔ وہ بہت مشکل سے وہاں سے نکل آیا، مگر افسوس کہ وہ اپنے سکوں کی تھیلی وہاں کھو بیٹھا۔ اس نے اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر اس نے اعلان کروایا کہ جو شخص اس کی سکوں والی تھیلی ڈھونڈ کر لائے گا اس کو اس میں سے 10 سکے انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ آخر ایک دن اس کے پاس ایک کسان آیا، اس کے پاس اس کی اشرفیوں والی تھیلی تھی۔ اس کسان نے وہ تھیلی نوجوان کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ لڑکا اس تھیلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، مگر جب کسان نے اپنا انعام مانگا تو اس لڑکے کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم پہلے اس میں سے اپنا انعام چرا چکے ہو۔ اس میں ایک انڈے کی شکل کا ایک موتی تھا جو کہ اب اس میں نہیں ہے۔ میں تمہیں عدالت میں لے کر جاؤں گا اور اپنا حساب پورا کروں گا۔ اس کسان نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا مگر وہ لڑکا نہ مانا۔ بیل کو کھونٹے پر بندھا ہوا دیکھ طوطا تن سے ہنسا، بھائی تمہارے تو کیا ٹھاٹ ہے، دن بھر ہل چلانا پڑتا ہے، کسان کے ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں، تب جا کر تمہیں چارہ ملتا ہے، دن کی چلچلاتے دھوپ بھی تمہیں اپنی پیٹھ پر سہنی پڑتی ہے۔ بیل چارہ کھاتے کھاتے رکا اور بولا، تمہاری اتنا دن بھر 4 دانوں کے لیے میلوں میل مارا نہیں پڑتا، کھاد لوٹنے پر اتنا تو طے ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا مل جائے گا، پھر جو چارہ کھلائے گا وہ کام تو لے گا ہی نا، بنا محنت کے بنا کام کے لیے کھانا بھی تو ٹھیک بات نہیں۔ تم کوئی کام نہیں کرتے، چپکے سے کسی کے مکئی کے کھیت میں گھس جاتے ہو، کسی کے باغ میں چوری چھپے جا کر پھل کترنے لگتے ہو، اس طرح کھانے کا کیا مزہ، طرح طرح کے کھانے تو مل جاتے ہیں تمہیں، اچھے پھل ڈھونڈنے کے لیے بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں جو آزادی ملی ہوئی ہے اس کا تو مزہ ہی کچھ الگ ہے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، تم اپنی مرضی سے کہیں بھی جا نہیں سکتے، اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں سکتے، تم کی اچھی دال کھاتے ہیں، ہم ان کے آنگن میں جا کر کچھ دانے اس میں سے کھا لیتے ہیں، تمہارے آنگن کے آم کے پیڑ ہر سال مزیدار آم لگاتے ہیں، تم نے کبھی چکھے بھی نہیں ہوں گے، ہمیں دیکھو پکے ہوئے آموں کا مزہ ہم سب سے پہلے اٹھاتے ہیں، تمہارے مالک کسان سے بھی پہلے۔ طوطے نے آنکھیں مٹکا کر کہا تھا۔ بیل کہاں چپ رہنے والا تھا، وہ بھی بولا، میرا مالک کسان میری حفاظت کرتا ہے، ٹھنڈ اور بارش میں مجھے الگ کمرے میں باندھ دیتا ہے، تمہیں تو باہر کھلے درختوں پر ٹھنڈ بارش اور اولوں کی مار جھیلنی پڑتی ہے۔ ارے بھائی ہم بھی کسی مکان کے کونے میں دبک جاتے ہیں، ہمارا بھی وقت کٹ جاتا ہے، اچھا برا وقت تو سبھی کے ساتھ ہوتا ہے،
अब हमारी जिंदगी को भी तो देखो, आज़ादी के फायदे तो हैं, लेकिन कभी हमें शिकारी मार गिराते हैं, कभी कोई चिड़ी मार पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। आसमान में उड़ते हुए भी बाज औकात झपट्टा मारकर हमला कर देते हैं हम पर। आज़ादी मिली है तो इसकी कुछ ना कीमत चुकानी ही पड़ती है ना। मज़ा और आज़ादी। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था जो इंतहाई दर्जे का सुस्त और काहिल था। वो सारा सारा दिन घर में पड़ा सोता रहता और किसान बेचारा खेतों में काम करता। किसान अब बूढ़ा हो रहा था। इसने सोचा कि अब इसके बेटे को अपना काहिलपन छोड़ देना चाहिए, लेकिन कैसे? आखिर किसान के जहन में एक तरकीब आई। अगले दिन किसान ने सुबह सवेरे बेटे को जगाया और कहा, उठो, शहर जाकर कुछ काम तलाश करो, और ताकि तुम्हें मैंने से कमाई रकम की अहमियत का अंदाजा हो सके। यह कहकर किसान खेतों की तरफ चल पड़ा। बाप के निकलते ही बेटा फौरन माँ की तरफ पलटा और मुंह बसोर कर बोला, अम्मा, मैं कैसे कमाऊंगा? मुझे तो कोई काम करना भी नहीं आता। एक दरिया में मेंढकों का एक खानदान रहता था। वो बहुत मजे से अपने दिन गुजार रहे थे। इस दरिया पर दो बैल रोजाना पानी पीने आते थे। एक दिन मेंढकों ने देखा कि सिर्फ एक बैल ही पानी पीने आया था। बुजुर्ग मेंढक ने इस बैल से पूछा, मियाँ बैल, तुम्हारा साथी आज तुम्हारे साथ पानी पीने क्यों नहीं आया? बैल ने बड़ी नफरत और हकारत से जवाब दिया, हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई है, इसलिए मैं अकेला ही आया हूँ। जब बैल पानी पीकर चला गया तो बुजुर्ग मेंढक ने बच्चों से कहा, बच्चों, जितनी जल्दी मुमकिन हो इस दरिया के किनारे को छोड़कर कहीं और जा बसो। बच्चों ने वजह पूछी तो बुजुर्ग मेंढक ने कहा, जहाँ ना इत्तेफाकी और दुश्मनी जन्म ले ले वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होता। एक नौजवान किसी जंगल में एक मगरूर ऊंट रहता था। उसे अपने लंबे कद और चाल ढाल पर बड़ा नाज था। इसका दावा था कि मैं सबसे आला हूँ। उसका जहाँ जी चाहता मुंह उठाकर चला जाता और सब जानवरों से बदतमीजी करता। कोई जानवर अगर इसको छेड़ देता तो वो इसके पीछे ही पड़ जाता। इसके घर के करीब चूहे का बिल था और ऊंट को इस चूहे से सबसे ज्यादा नफरत थी। वो इस चूहे को ना जाने क्या क्या अलकाबात देता रहता, लेकिन चूहा हंस के टाल देता था। जंगल के सब जानवर ही ऊंट की बदतमीजी से तंग थे और चाहते थे कि उसे इसकी किए की सजा मिले, मगर अभी तक ऊंट को खुली छुट्टी मिली हुई थी। बहार का मौसम आ गया, हर तरफ फूल खिले हुए थे। जंगल में भिन्न भिन्न खुशबू फैली हुई थी। ऊंट सोकर उठा तो इसे बड़ी जबरदस्त भूख लगी। वो मुंह आए चरने निकल गया और अपनी लंबी गर्दन उठाकर दरख्तों के पत्ते और फल खाता रहा। इसी दौरान उसने एक कांटू बड़े दरख्त की टहनी देखी तो उसे तोड़ने के लिए अपनी गर्दन ऊंची की। चालाक हिरन न सिर्फ अपनी फुर्ती और तेजी की वजह से जंगल में मशहूर था, बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। एक दिन वो जंगल में मज़ेदार फलों और दूसरे खाने पीने की चीज़ों के लिए घूम रहा था। अगरचे वो बहुत छोटा था, मगर वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था। इसे पता था कि बहुत से बड़े बड़े जानवर इसे अपनी खुराक बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें चालाक हिरन को पकड़ना होगा, जो कतई नामुमकिन था। अचानक चालाक हिरन को किसी के दहाड़ने की आवाज़ आई। वह यकीनन एक चीता था। चालाक हिरन, कैसे हो तुम? मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए कुछ करो। देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे दोपहर का खाना बन सकते हो। लेकिन चालाक हिरन बिल्कुल भी चीते का खाना नहीं बनना चाहता था। आखिर इसने इधर उधर नजर दौड़ाई और अपने जहन से कोई तरकीब सोचने लगा। इसने एक कीचड़ का ढेर पड़ा देखा, लेकिन चीते, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज ये बादशाह का खाना है और मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ। ये कीचड़? चीते ने हैरानी से पूछा। हाँ, ये ही बादशाह का खाना है, चालाक हिरन ने कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। और तुम्हें क्या पता कि इसका जायका दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई और इसे खाए। चालाक हिरन की ये बातें सुनकर पहले तो चीता देर तक इस कीचड़ को तकता रहा, फिर बोला, मैं बादशाह के इस खाने को चखना चाहता हूँ।
नहीं नहीं चीते, बादशाह सलामत बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चखूंगा, बादशाह को इसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि मुझे दूर जाने दो ताकि कोई भी मुझ पर इल्ज़ाम न लगा सके। ठीक है चालाक हिरन, तुम यहाँ से जा सकते हो। चीते का इतना कहना था कि चालाक हिरन ने वहाँ से दौड़ लगाई और ये जा वो जा। इसके बाद जब चीते ने वो मिट्टी से बड़ा कीचड़ चखा तो आह तो करता रह गया। इसे चालाक हिरन की ये हरकत बहुत बुरी लगी। इसने इसे सजा देने का फैसला किया। वो जानता था कि अगरचे चालाक हिरन बहुत तेज दौड़ता है मगर इसकी रफ्तार इससे ज़्यादा थी। ये सोचकर इसने फिर चालाक हिरन का पीछा किया। बिलाखिर इसने चालाक हिरन को जा लिया। चालाक हिरन, तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है, अब तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा। अब चालाक हिरन ने दोबारा इधर उधर देखा। इसे एक शहद का छत्ता नजर आया। इसने कहा, मगर चीते, मैं आज तुम्हारा खाना नहीं बन सकता क्योंकि मैं बादशाह के इस ढोल की हिफाजत कर रहा हूँ। बादशाह का ढोल? मगर कहाँ है? चीते ने हैरानी से पूछा। ये रहा। चालाक हिरन ने शहद के छत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस ढोल की आवाज़ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी है। बादशाह हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई इसकी आवाज़ सुने। फिर चीते ने कहा, लेकिन मैं बादशाह के इस ढोल की आवाज़ को रबिया को किताब देने का बहुत शौक था। खासतौर पर वो परियों की कहानी बहुत रगबत और शौक से पढ़ती थी। एक दिन स्कूल से वापसी पर इसने एक बुढ़िया को देखा जो कदरे परेशान मालूम होती थी। जब रबिया ने इसका हाल अहवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ खास मोती यहाँ पर गिर गए हैं जो सफेद रंग के हैं और तादाद में 11 हैं। बेनाई कमजोर होने की वजह से मुझे मिल नहीं रहे। रबिया ने उनकी मदद करने की ठान ली और काफी तगड़ों के बाद इसने सारे मोती ढूंढकर बुढ़िया को दे दिए और जल्दी से घर के रास्ते पर गामजन हो गई। सारे रास्ते वो इन मोतियों के बारे में सोचती रही। इतने खूबसूरत और चमकीले खासे कीमती मालूम होते थे। तभी तो बुढ़िया परेशान थी। रात के खाने के बाद थोड़ी देर घर की छत पर टहलना इसका मामूल था। आज काफी खूबसूरत मौसम था। बिल्कुल साफ शफाफ दिलकश सा चांद पूरे जोबन पर चमक रहा था। हर तरफ इसकी चांदी बिखरी हुई थी। कुछ ही देर में भीने भीने खुशबू फैलने लगी। दूर से एक रोशनी का हाला करीब आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मंजर साफ हो रहा था। इसकी उड़ान कुछ तितली की मानद थी। बिलाखिर वो करीब आ गई। वो एक बहुत हसीन और जमील लिबास में मलबूस एक हाथ में छड़ी लिए परी थी। रबिया थोड़ी सी परेशान हो गई, लेकिन परी ने उसे हौसला दिया कि वो इसका एहसान का बदला चुकाने आई है। परी ने इसे बताया कि स्कूल के बाद उसने जिस बुढ़िया की मदद की थी असल में वो थी। सब चांद परी कहते हैं। जो मोती तुमने मुझे ढूंढ कर दिए थे असल में वो मेरी छड़ी के थे जो शैतानी कुर्तों से लड़ते हुए टूट गए थे। इसके टूटते ही मेरे जिस्म की ताकत खत्म हो गई थी और मैं बूढ़ी नजर आने लगी थी। लेकिन वो मोती एक मर्तबा का जिक्र है कि एक कुएं में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उनमें से एक मेंढक बहुत भद्दा और बदसूरत था। उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे। उस वक्त भी सब उसका मजाक उड़ा रहे थे तो उसे बहुत गुस्सा आया। हमें देख तो ऐसे रहे हो जैसे हमें खा जाओगे, एक मेंढक ने कहा तो बाकी सब हंसने लगे। मैं तुम सबको देख लूँगा, बदसूरत मेंढक बोला। तो सब इसका मजाक उड़ाते हुए खुराक की तलाश में बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद भद्दा मेंढक सोचने लगा कि इनसे कैसे बदला ले। फिर वो भी कुएं से बाहर निकल आया। सामने से इसे एक सांप नजर आया तो मेंढक ने इससे कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि सांप मेंढक को खा जाता है? सांप ने इससे पूछा था। मुझे मालूम है, लेकिन अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो तुम्हें मैं ऐसी जगह लेकर जा सकता हूँ जहाँ बहुत सारे मेंढक हैं। भद्दे मेंढक ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ ले चलो और मुझे तुम ये बताओ कि तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? मैं तुमसे दोस्ती इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इन सब मेंढकों से बदला लेना चाहता हूँ जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेंढक ने सांप को बताया तो सांप ने जवाब में कहा, ठीक है दोस्त, चलो मैं तुम्हारा बदला लूँगा। चनाचा मेंढक सांप को अपने साथ कुएं में ले गया जहाँ बाकी मेंढक इन दोनों को देखकर खौफजदा हो गए। बहुत अकड़ते थे तुम सब, मेरा मजाक भी उड़ाते थे। आज मेरा ये दोस्त तुम सबको खा जाए। भद्दे मेंढक के कहते ही सांप ने एक मेंढक को हड़प कर लिया। उसके बाद उसने भद्दे मेंढक को गुस्से से देखा जिसे दोस्त समझकर कुएं में लाया था। फिर सांप ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। मगर हम तो दोस्त हैं, भद्दे मेंढक ने डरते डरते कहा। सांप किसी का दोस्त नहीं होता बेवकूफ़, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, सांप ने अपनी लंबी ज़बान बाहर निकालते हुए कहा।
एक मिनट रुको, अगर मैं तुम्हारे लिए और बहुत सारे मेंढक यहाँ ले आऊं तो? भद्दा मेंढक बोला। नहीं, तुम इन सबको यहाँ ना लाओ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, सांप बोला। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो सब तुम्हें देखकर डर के भाग जाएंगे। मैंने किसी तरह बहला फुसलाकर